गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी सोशल साइंस है ना, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकेंड, उसका चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, तो हम पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अभी तक हमने डाइवर्सिटी पढ़ा। क्लास 7 का पहला चैप्टर था डाइवर्सिटी। ठीक है, अब क्लास 6 का पहला चैप्टर था डाइवर्सिटी, यानी कि हमने पढ़ा लोग कितने डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ओके, हमने पढ़ा इंडिया में कितनी डाइवर्सिटीज़ है, हर शख्स या हर इंसान यहाँ पे डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द प्लेस जहाँ पे वो रहता है, या अकॉर्डिंग टू द कल्चर, या अकॉर्डिंग टू द फैमिलीज जहाँ से वो बिलोंग करता है। तो हर इंसान डिफरेंट होता है। ओके, अभी तक हमने वो पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का पहला तो जिसका मैं इक्वालिटी है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इक्वालिटी क्या है एक्चुअली, जो इक्वालिटी है ना वो क्या है, एंड इंडियन डेमोक्रेसी में उसका क्या महत्व है, क्या मतलब है। तो पहले हम समझेंगे इक्वालिटी किस चीज़ का नाम है, इक्वालिटी एक्चुअली होता क्या है। तो इक्वालिटी इज़ द it is the equality is actually that everyone is equal before law. Okay, so nobody is above the law, nobody is below the law. What does that mean? इसका ये मतलब है कि अगर कोई क्राइम करता है, ठीक है, कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी कोई क्राइम करेगा, कोई भी, या कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा, क्या करेगा, अनलॉफुल एक्टिविटी। okay, anybody in the world, anybody in the country of India, in the Indian country, या Indian Indian state. Okay, anybody in the Indian state, town or a village or a municipality, anybody will if anybody commits a crime or any unlawful activity according to the constitution of India, which is unlawful, which is prohibited in the India. Okay, that person or that minister or that officer or that government official will get the same punishment, will get the same punishment for that particular crime. इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी शख्स इंडिया में, जैसे कोई मिनिस्टर हो, वो कोई ऑफिसर हो, कोई टीचर हो, कोई इलिटरेट हो, कोई भी शख्स अगर कोई भी क्राइम करेगा, ओके, कोई भी क्राइम करे, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनलॉफुल बताया गया है, हर उस इंसान को सेम ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर के लिए एक सज़ा है, उस क्राइम को गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए अलग सज़ा होगी एंड टीचर के लिए अलग सज़ा होगी। नो, द एवरीबडी विल गेट अ सेम पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम, सेम पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम, चाहे वो कोई भी इंसान हो ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। ओके माय डियर्स, गॉट इट। एंड यहाँ पे है नो वन इज अबव द लॉ। लॉ जो है ना, everyone is equal before law and no one is above law. That means that nobody is when the law, when a constitution is implied, when a constitution is imposed, or when a constitution is imposed in India, when the constitution was drafted in India by the drafting committee after the independence. So that time the constitution that have been already drafted, it's same for everybody, it's same for everybody. That constitution has to be followed by the everyone, every citizen of the India has to follow the same constitution, the same laws, has to follow the same regulations. Okay, so that means no one is above the law. Whatever a law has been prescribed for a citizen, for a labor of India, that is like you have to cross a road by this way, by the right, you have to walk on the right, you have to go you have to file a petition for anything, or you have to do any process for a government job, for anything, for any whatever. There are the regulations, there are the laws, there are the rights, there are the duties, whatever they are same for every citizen of the India. So no one is above that constitution. Everybody has to follow the Indian constitution. Everybody has to obey that, has to go according to that constitution. So nobody is above that
constitution, above that law. Okay, then the third point is there should be no discrimination. On no discrimination. Discrimination means when we make difference between the people, when we say he's inferior than me, I'm superior than the another, he's better than this, he's a better, far better than that. This is called the discrimination. But we can discriminate, like for example somebody in the class, जैसे हमारी क्लास में, आपकी क्लास में एक बच्चा है, जैसे यहाँ पे 50 बच्चे हैं, ठीक है, सब बच्चे मेहनत करते हैं, ओके, सारे बच्चे वर्क हार्ड करते हैं, एंड उसमें से एक बच्चा बहुत वर्क हार्ड करता है तो वो फर्स्ट आता है, ठीक है, तो वो जो उसको फर्स्ट पोजीशन मिलता है ना, किस बेस पे मिलता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है। तो इसको जो यहाँ पे जो होता है ना कि उस बच्चे को ही फर्स्ट क्यों दिया गया, बिकॉज उसने बहुत मेहनत किया, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेरिटोक्रेसी। मेरिट बेसिस पे हम लोग किसी को कुछ पॉइंट्स देते हैं, मेरिट बेसिस पे। तो वहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन उसको हम नहीं बोलेंगे कि हमने डिफरेंस किया, नो, क्योंकि उसको मेरिट, उसने बहुत मेहनत की तो ही गॉट द मेरिट, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल और कोई चीज़ आप किसी की रेस के, जैसे कि हम बोलेंगे ये इस रेस का, जैसे ये आर्यन रेस का है, द्रविडियन रेस का है, या बहुत सारे रेसेस होते हैं, ठीक है, कि इंसान किस रेस है, जैसे नॉर्थ इंडिया को बोलते हैं ये आर्यन रेस, सारा सिविलाइजेशन है, तो ये किस क्लान किस रेस से है, तो उसकी वजह से हम उसमें डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो ये अलाउ नहीं है इंडिया में। कास्ट बेसिस पे, ये जो कि हमने पढ़ा कास्टिज्म कैसे इंडिया में आया, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, कि कोई शख्स था, जो लोग थे ना, जैसे पोर्टर्स होते थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो वो काम करते थे ना, तो उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता, उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था, तो कास्ट जो बन गया था ना, तो वो उनको फिर क्या कास्ट मिलता था इस बेसिस पे। जैसे कि हमारे पास ब्राह्मण है, ये क्षेत्रीय है, जैसे कि इनको वेश्याज है, शूद्राज है, अनटचेबल्स है, ये सब कास्टिज्म में फिर विद द टाइम ये एक कास्ट बन गया कि ये जो कास्ट के लोग हैं ना, ये सिर्फ एक ही काम करते हैं, बस वैसा हो गया है। मतलब पूरा कास्टिज्म के ऑक्यूपेशन के बेस पे हमने उनको एक क्या लेबल दिया, और हमने उनको बोला कि आप लोग इस ऑक्यूपेशन से कभी नहीं निकल सकते हो। इससे पहले जैसे हमने अभी पढ़ा कि कास्टिज्म में क्या होता है कि जब कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी ऑक्यूपेशन में होते हैं, कोई फैमिली कोई ऑक्यूपेशन होता है, किसी प्रोफेशन में, किसी प्रोफेशन में होते हैं, एंड उस प्रोफेशन में क्या होता है, फिर उनको बोलते हैं कि अब तुमको हमेशा यही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इसके बगैर आप दूसरा प्रोफेशन नहीं पढ़ सकते, कोई दूसरा नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, कास्टिज्म इंडिया में आ गया, तो वो होता है कास्ट। तो कास्ट के बेस पे आप किसी को क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। क्रीड होता है रिलीजन के नाम पे आप किसी के साथ कोई इनइक्वालिटी, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। जेंडर लाइक मेल या फीमेल वगैरह उस पर भी नहीं कर सकते। प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन से आप हो, कोई लेबर हो, कोई टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई स्कॉलर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई IT प्रोफेशनल हो, हुएवर इट इज़, ऑल आर इक्वल। किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस बेसिस पे, खाली रेस, कास्ट, क्रीड, जेंडर, प्रोफेशन, इस बेस पे किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी। किस में मिलेगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो भी होती है ना, या कोई भी एम्प्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात है कि उस जॉब के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो ऑफिशियल लेवल हो, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D, एनी डैम जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर दैट जॉब टू कम्पीट। ठीक है, जैसे हम लोग सब अभी JSB के फॉर्म निकलते हैं, JKPSC के फॉर्म निकलते हैं, UPSC के फॉर्म निकलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सब फॉर्म भरते हैं। ओके, फिर जो बच्चा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उसी को वो पोजीशन मिल जाती है। तो दैट्स कॉल्ड द मेरिट बेस, उसको वो ऑफर। लेकिन सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक इक्वल फील्ड मिलता है कि आप सब पढ़िए इस एग्ज़ाम के लिए, आप सब मेहनत कीजिए, आपको मेहनत करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपको पढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस जॉब के लिए, इस कंपटीशन के लिए। तो आप सब इस कंपटीशन के लिए पढ़िए, मेहनत कर लीजिए, ताकि सबको एक ग्राउंड, एक फील्ड मिलता है। आप सब लोग compete करके फिर जो उसमें बेस्ट होगा, जो जिसने बेस्ट मेहनत की होगी, he will get the merit, he will get his seat, he will get the job। तो that's called the equal opportunity। जब हम सबको एक equal field देते हैं कि अब आप यहाँ पे compete एक दूसरे से कीजिए, this is called the
हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये सब क्या है, ये एक इक्वालिटी का कंसेप्ट है। तो हमने इक्वालिटी का कंसेप्ट क्या समझा कि जो भी हम जो सब है ना, हम सब वी आर इक्वल बिफोर द लॉ। ओके, नो वन इज अबव द लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, क्रीड, प्रोफेशन एक्सेट्रा। ठीक है, एवरी वन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब इट कम्स अंडर द इक्वालिटी, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। एंड जो ये इक्वालिटी है ना, इट हैज़ बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो कि राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल 14 to 18। जो आर्टिकल 14 to 18 है ना, उसमें उसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, राइट टू इक्वालिटी। ओके, तो राइट टू इक्वालिटी में कौन से पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स हैं कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, नो वन इज अबव लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, जेंडर, प्रोफेशन, एंड एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इक्वालिटी क्या है। लेकिन ये हमारा इक्वालिटी का कंसेप्ट है किसमें, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये क्या है, इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ये हमारी एक कंट्री जो होती है ना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका एक सुप्रीम लॉ होता है, यानी कि एक ऐसा लॉ जिस लॉ को सब मानते हैं, सब ओबीडियंट होते हैं टुवर्ड्स दैट लॉ, सब उस लॉ को ओबे करते हैं। अगर उस लॉ को कोई क्या करेगा, वायलेट करेगा, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट लॉ ऑफ लैंड विच इज़ ओबेड बाय एवरीबडी, विच हैज़ टू बी ओबेड बाय एवरीबडी, विच हैज़ टू गो थ्रू बाय एवरीबडी। सो दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है ना, कि जो राइट्स हैं जो सिटीजन्स को दिए गए हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो दैट जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने सिटीजन्स पे कोई भी जाति ना कर सके, कोई भी जुल्म ऑपरेशन ना कर सके। तो उसके लिए सिटीजन्स को राइट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, राइट्स। एंड वो राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, ये हैं 12 to 35 से, आर्टिकल 12 to 35 तक हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। और उसमें जो राइट टू इक्वालिटी है ना, वो है आर्टिकल 14 to आर्टिकल 18। ये हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। ओके, अब सवाल उठता है, क्या इंडिया में राइट टू इक्वालिटी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? क्या सच में हमारी सोसाइटी में राइट टू इक्वालिटी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? एक्चुअली लोग मतलब इट्स एक्चुअली गवर्निंग द पीपल? क्या ये सच है, क्या ये एग्जिस्टेंस में है? तो दैट्स व्हाट वी नीड टू चेक। तो जो कि आपकी बुक में लिखा है, क्या राइट टू इक्वालिटी एक्चुअली है इंडिया में? तो ये सब जानने के लिए कि इंडिया में राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी किस लेवल तक है, तो वो सब हमको बुक, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें 3 स्टोरीज दी गई है। कितनी स्टोरीज, 3 स्टोरीज। एक तो है कांता की स्टोरी। कांता एक डेमोक्रेटिक इट्स अ डोमेस्टिक वर्कर होती है। कांता इज़ अ शी इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर। ठीक है, पहली कौन है, इट्स कांता, शी इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर। ठीक है, एक कहानी कांता की, जो एक डोमेस्टिक वर्कर यानी कि जो किसी के इसके एम्प्लॉयर्स होते हैं नेबरहुड्स में, जो उनके घरों में काम करती होती है, उनका झाड़ू पोछा सारा करती है। तो शी इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर। फिर एक और स्टोरी है, दैट्स ओम प्रकाश वाल्मीकि। वो एक दलित बॉय होता है। ठीक है, दलित जो होता है ना, इनको मोस्टली अनटचेबल बोलते हैं, बिकॉज उनका जो मतलब जैसे कास्टिज्म से ही दलित्स वगैरह आए हैं, तो उसकी वजह से और कास्टिज्म कैसा है, ऑक्यूपेशन की वजह से आया। तो जो ये दलित्स है, इनको क्या ऑक्यूपेशन दिया गया था, इनको दिया गया था मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है कि जब लोगों को क्या काम दिया जाता है कि वो सारा जो भी होता है ना, जैसे यू कैन से द सैनिटेशन वर्क, जो भी सैनिटेशन का काम होता था ना, वो सारा कौन करते थे, दलित्स करते थे। ठीक है, एंड इनको इससे कभी निकलने नहीं दिया जाता था। सो ये एक दलित बॉय था। एंड एक और स्टोरी, दैट्स मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ये एक मुस्लिम कपल होता है, इनको एक अपार्टमेंट ढूंढना होता है। ओके, तो इनको क्या होता है, व्हाट हैपन इन द स्टोरी। सो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम उससे ये समझेंगे कि क्या सच में हमारे इस देश में जो ये इक्वालिटी है, क्या वो एग्जिस्ट सच में करती है, क्या सच में लोग मतलब हमारी पूरी सोसाइटी में इक्वालिटी है। वही हमको समझने की ज़रूरत है।
तो उसके लिए हम पहले कौन सा कहानी पढ़ेंगे? पहले हमें पढ़ना है कांता की स्टोरी। तो कांता क्या है? एक डोमेस्टिक वर्कर है। और जो ये स्टोरी है ना, ये हम कल हम तीनों स्टोरीज पढ़ेंगे, तीनों का हम कंपैरिजन्स पढ़ेंगे, सो दैट कि आपको भी एक ये रहे क्यूरियोसिटी व्हाट शुड बी द एक्चुअल दिस सिनेरियो ऑफ द इक्वालिटी इन द करंट इंडिया। क्या, और जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, लोगों में बहुत डिफरेंस है इन द कल्चर्स, in their living styles, in their food, everything. Okay, you know that. So अब उस सारी डाइवर्सिटी में तो इक्वालिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वी शुड नो दैट। तो हम ये तीनों स्टोरीज पढ़ के हम कल इसको अच्छे से क्या बता सकते, ओपिनियन बना सकते हैं कि हाँ कहाँ पे ये जो इक्वालिटी है ये कहाँ पे इंडिया में स्टैंड हो रही है। ओके, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।